Hello, my dear friends. Let us discuss the preparation properties and structures of oxides of nitrogen. As you know, there are six oxides of nitrogen which is visible on your screen. First one is the dinitrogen monoxide, or you can say oxide. Second one is nitrogen monoxide. Third one is dinitrogen trioxide. Fourth one is nitrogen dioxide. Fifth one is dinitrogen tetroxide, and sixth one is dinitrogen pentoxide. What I told you, they are the common name of oxides of nitrogen. To give IUPAC name, first you have to find oxidation state of nitrogen. See here, oxygen is a simple, so -2 means that side is +2. You have to find like this: 2 nitrogen plus oxygen is equal to 0. For this oxidation state is minus, so that side is +2. Transfer it in a right side, it becomes +2. So nitrogen is equal to 2 divided by 2 is equal to +1. Okay. Let us take blank page to explain this concept. See, suppose our oxide is, don't observe this, this is the practice question regarding oxides of nitrogen that we will discuss later on. Just I want a blank page. So suppose N2O4 is there. How to find oxidation state? So write down like this: 2 nitrogen plus 4 oxygen is equal to 0. No charge on any oxygen. Any oxides of nitrogen. इसका होगा -8 is equal to 0. So 2 nitrogen is equal to +8. So nitrogen is equal to 8 divided by 2 is equal to +4. Similar way, you have to find oxidation states of each nitrogen in oxide. For this nitrogen, you have to find oxidation state, and oxidation state written here: +1, +2, +3, +4, here also +4, then last one is a +5. Okay. Now I have to explain you how to write IUPAC name of oxides of nitrogen. See here, oxidation state is +1, +2, +3, +4. Okay, so first write down nitrogen and then write down oxide, and write down here in a Roman figure oxidation state. Here oxidation state is +1, so nitrogen 1 oxide. Similar way, here is +2, so nitrogen 2 oxide. +3, so nitrogen 3 oxide. +4, so nitrogen 4 oxide. +4, so nitrogen 4 oxide. +5, so nitrogen 5 oxide. Okay, like that. IUPAC names are very easy, and this name you can write according to number of atoms, like this: dinitrogen oxide, nitrogen monoxide, dinitrogen trioxide, you know very well. So these 3 columns are completed. First prepare and write down all the oxides in an increasing order of their oxidation state of nitrogen. See here written: +1, +2, +3, +4, +4 and +5. Now important thing is how to prepare the oxides of nitrogen. Listen carefully. First observe oxide.
you require 2 nitrogen and 1 oxygen. So select a compound in which 2 nitrogen are present. So see, in ammonium nitrate 2 nitrogen are present. Okay, common and well known compound is ammonium nitrate, 2 nitrogen is present. So from ammonium nitrate, by heating we get N2O, and number of hydrogen gives half number of water molecule. Or see, in N2O 1 oxygen is used here and 2 oxygen remain, according to that 2 water molecule is obtained. ओके, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, उसके हिसाब से आप उसको सीक्वेंस में याद रखना. लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि ये ऑक्साइड्स लाइन में आने चाहिए. पहला N2O NO, उसके बाद N2O3 NO2, ओके, N2O4 एंड N2O5, लाइक दैट. तो पहले ये कॉलम प्रिपेयर करो, कॉलम नंबर 1 कॉमन एंड IUPAC नेम. उसके बाद उसके फॉर्मूले लिखो. देन ये 3 कॉलम बहुत इजी है. कॉलम नंबर 4 एंड 5 वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें मैं समझाता हूँ आपको कैसे प्रिपेयर करना है. पहले में याद रखना है कि मुझे 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए. तो आप ऐसा कंपाउंड लो जिसमें 2 नाइट्रोजन हो, तो वो है अमोनियम नाइट्रेट. ठीक है. देन आफ्टर यू हैव टू प्रिपेयर NO. तो ये थोड़ा आपको लिख के तैयार करना है और बाद में बैलेंस करेंगे इसको. देखिए, ये नैनो कार नंबर 2 वो कहीं फंसी मतलब FeSO4. उसे देख के एक लड़की हंसी मतलब H2SO4. ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है. नैनो कार कहीं पे फंसी FeSO4. तो आपको ये तीनों कंपाउंड याद रहेंगे. ठीक है. तो उसमें से क्या क्या प्रोडक्ट मिलती है वो आपको याद रखना है. एक है आयरन सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, वाटर मोलेक्यूल एंड नाइट्रोजन मोनोक्साइड. ठीक है. ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उस हिसाब से ये इजीली बैलेंस नहीं होगा. देखिए, NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NO, और NO2 में आप देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन 4 है, NO में +2 है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ +4 से डिक्रीज हो रहा है +2, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है. अब उसके सामने Fe को देखो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और इस Fe को देखो, उसका ऑक्सीडेशन +3 है. तो इन Fe ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस बाय 1. तो ये पूरा रेडॉक्स रिएक्शन है, ये बैलेंस होने वाला नहीं है ऐसे. ठीक है. बाय यूजिंग रेडॉक्स रिएक्शन मेथड यू कैन बैलेंस. फिर भी अगर एग्ज़ाम में आप थोड़ा कन्फ्यूज़न फेस करें तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है. अभी आपको ये नहीं देखना है, ये वाला मैं यह समझाने के लिए ब्लैंक पेज ले रहा हूँ. मैंने बोला है कि नैनो कार नंबर 2 NaNO2 वो कहीं पे फंसी मीन्स FeSO4. उसको देख के एक लड़की हंसी मतलब H2SO4. अब आपको सामने वाली प्रोडक्ट पता होनी चाहिए. ये FeSO4 थ्राइस, Fe2SO4 थ्राइस. ठीक है. प्लस NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, प्लस हमें जो प्रोडक्ट बनानी है वो NO मिल रही है, नो. ठीक है. अब आप इसको बाय रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ही बैलेंस होगा. और आप लोगों को इसका ये रिएक्टेंट की स्टोक्योमेट्री याद रखनी पड़ेगी, तो ये आराम से हो जाएगा. ठीक है. फिर भी कोई हिंट्स आप याद रख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये इतने मोल्स चाहिए. देखिए, जैसे आप ये याद रख लो कि इसकी स्टोक्योमेट्री जो है वो 2, 2 एंड 3 है, तो सीधा आपको ये प्रोडक्ट बैलेंस हो जाएगी. ठीक है.
कैसे, जैसे कि 2 सोडियम है तो मुझे 2 सोडियम बाइसल्फेट मिलेंगे, 2 Fe है तो Fe2SO4 3। इसके बाद जितने हाइड्रोजन बचते हैं, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन तो 2 NO, और बाद में हाइड्रोजन का जो है कैलकुलेशन करो तो हाफ नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, मानो कि 4 हाइड्रोजन बचते हैं तो 2 वाटर मोलिक्यूल, 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर मोलिक्यूल, इस हिसाब से। लेकिन ये स्टोक्योमेट्री आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चलिएगा तो आप रिएक्शन लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम में अगर बैलेंस ना कर पाए तो भी मेरा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से आप अनबैलेंस रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। ब्लैंक रखने से ये अच्छा है कि आप अनबैलेंस भी लिखो। अब देखो कि मुझे बनाना है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। देखिए ये डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, रिएक्शन को देखो तो आप उसमें ऑब्जर्व करो तो मुझे उसमें से ही 2 ऑक्साइड लेने हैं। तो एक में ले रहा हूँ डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और एक में ले रहा हूँ NO, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मिलेंगे 2 मोल, 2 मोल्स। तो आपको ये टेम्परेचर यहाँ पे डेल्टा की साइन भी कर सकते हो, 250 केल्विन इज देयर, ओके। तो ये प्रिपरेशन आप ऐसे याद रख सकते हो कि मुझे 2 ऑक्साइड नाइट्रोजन के ही लेने हैं, उसको मैं मर्ज करूँगा तो मुझे मिलेगा N2O3, N2O3। तो मैं कौन सा ले रहा हूँ, एक तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। दूसरी हिंट्स में ये दे रहा हूँ कि जो आप 2 ऑक्साइड्स ले रहे हो उसमें जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करो। ये 1 ऑक्सीजन है तो उसको मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 ऑक्सीजन। तो टोटल नाइट्रोजन आपके पास हुए 4, आपको बनाना है N2O3, तो आपको मिलेंगे प्रोडक्ट 2 मोल्स N2O3। देखिए हो गया। कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, ये इजी मेथड मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप थोड़ा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, इससे याद नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे आप ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, दैट इज़ वेरी इजी। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करके चलूँ मेथड। तो मुझे 2 नाइट्रोजन यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे कंपाउंड का डिकम्पोज कर रहा हूँ जिसमें 2 नाइट्रोजन हो, और उसको हीट करो तो डायरेक्ट आपको जो ऑक्साइड है वो मिल जाएगा। देन रिमेनिंग हाइड्रोजन गिव्स हाफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकंड में आप देखें तो मुझे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपको, नैनो कार नंबर 2 कहीं पे फंसी, उससे देख के एक लड़की हंसी। उसका मतलब NaNO2 FeSO4 H2SO4, प्रोडक्ट Fe का ऑक्सीडेशन होगा, Fe2SO4 3, सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा। स्टोक्योमेट्री आपको याद रखनी है 2 2 3, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे बनाना है N2O3, तो मुझे 2 ऑक्साइड इसमें से ही लेना है, एक तो NO और दूसरा N2O4। और बैलेंस करने के टाइम पे जिस ऑक्साइड के पास ऑड नंबर ऑक्सीजन है उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करो, 2NO, तो सीधा आपको मिलेगा N2O3। हीट करना है, यू हैव टू हीट एट 250 केल्विन। आगे चलते हैं, ठीक है। अब 3 ही बनाना बाकी है। NO2, so NO2 can be prepared by the decomposition of lead nitrate, okay, lead nitrate gives us NO2। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, टेम्परेचर भी याद रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट याद रहता है तो ठीक है। तो 250 यहाँ पे 673। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हम करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड you can get, okay।
इसको आप एक स्टेटमेंट में ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेना है। क्या याद रखेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेना है। लेना मतलब लेड नाइट्रेट। तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये लेड नाइट्रेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से होगा। अब इस रिएक्शन को, अब मुझे पता चल गया कि मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेना है। तो लेड नाइट्रेट, ये देखिए इसका फॉर्मूला है PbNO3। PbNO3 twice। ठीक है, इसको डिकम्पोज करो तो लेड नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड एंड आई विल गेट NO2। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि इसको बैलेंस कैसे करें। तो मैं एक हिंट्स देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे भी ऑड ऑक्सीजन है उसको इवन में कन्वर्ट करो। ये है 3 2 जा 6, लेड नाइट्रेट में 6 ऑक्सीजन है, NO2 2 ऑक्सीजन है, लेकिन लेड ऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन है, तो उसको 2 में कन्वर्ट करो। ये 2 Pb, सो 2 PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, तो टोटल मुझे यहाँ पे 4 नाइट्रोजन मिल रहे हैं, तो 2 NO2। देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, लेड भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। आपको रट्टा नहीं लगाना है, ऐसे बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, चलिए मैं वही क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब ये हमने बना दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हिंट्स लिख लेना, ठीक है, बुक में मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लेना। अब मुझे बनाना है डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड N2O4। तो अब 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन बाय द डाइमराइजेशन ऑफ NO2, इसको आप डबल कर दो। तो थोड़ा कूलिंग करो, ये एरो लगा देना यहाँ पे। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। 2 NO2 बाय कूलिंग डाइमराइजेस इनटू N2O4, बहुत इजी प्रोसेस है। ठीक है, और अगर हीट करेंगे तो वही फिर से ये डाइमर मोनोमर में चेंज हो जाएंगे, 2 NO2 हमको वापस मिल जाएंगे। हीट करेंगे तो 2 NO2, कूलिंग करेंगे तो डाइमराइजेशन N2O4, ये 2 कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो N2O4 में ये याद रखना कि ये NO2 है ना, 2 नटों को हम लोग साथ में रखेंगे। NO2 का मतलब NO2 बोलेंगे ना तो नटू नटू हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें ऐसे आप याद रखेंगे कि अगर मुझे N2O4 बनाना है तो मुझे 2 नटों को साथ मिलाना है। हो गया। अब मुझे बनाना है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। वो कैसे बनेगा? ये फॉर्मूला जो है वो मैं ये यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं थोड़ी दूसरी टाइप की हिंट्स आपको दे दूँ। तो यहाँ पे देखो पेंटॉक्साइड, तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P4 सही मायने में ये है 2P2O5 इज नथिंग बट P4O10। तो अगर मुझे पेंटॉक्साइड बनाना है तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड चाहिए। उसको हनी के साथ मिलाना है। हनी मतलब HNO3। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, तो मुझे एक फॉस्फोनिक एसिड मिलेगा HPO3 और डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड मिलेगा। देखिए स्टेटमेंट को याद रखिएगा। मुझे डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो हनी को P4O10
बिकॉज दिस पेंटॉक्साइड इज ऑलवेज डाइमर। अगर जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी याद है कि P2O5 इज एग्जिस्ट एज अ डाइमर, तो वो ऐसे ही लिखेगा 2P2O5, या तो इसकी जगह पे लिखेगा वो P4O10। अब हमको पता है कि यहाँ से हमें N2O5 बनाना है प्लस एक फॉस्फोनिक HPO3, ये एक टाइप का एसिड है वो बनता है, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ ऑब्वियसली 2HNO3 आएगा। ये 2P2O5 है, तो आप 4HPO3 लगा सकते हो, ठीक है। फिर भी एक मेथड जो मैं बताता हूँ आपको कि प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन ऑड है, तो इसको इवन में कन्वर्ट कर दो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको फिर से बैलेंस करूँगा। देखिए, एक छोटी सी हिंट्स देके, हनी को किस में मिलाना है? HNO3। P2O5 ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइमर, उसमें से मेरी प्रोडक्ट है N2O5 और दूसरी प्रोडक्ट है HPO3, ठीक है। तो जब भी आप बैलेंस करें तो प्रोडक्ट यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो 5 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट के 5 ऑक्सीजन को इवन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये 4 नाइट्रोजन 4 HNO3, ठीक है। अब यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, तो 4 HPO3। अब आप देख लो ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 4 3 जा 12। ऑक्सीजन बैलेंस, फॉस्फोरस बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, एवरीथिंग बैलेंस। तो बैलेंस करते वक्त ध्यान में ये रखना है कि नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड में जो ऑड ऑक्सीजन है उसको पहले मुझे इवन में कन्वर्ट करना है। 2-3 बार मैं ये हिंट्स आपको दे चुका हूँ। तो ये ऑक्सीजन को इवन में कन्वर्ट करने से पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अपने आप ट्राई करिएगा, देखते आप जब देखेंगे ना तो आपको इजी लगेगा कि नहीं ये हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से ये रिएक्शन पूरा वीडियो देखने के बाद, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट डाउन ऑल द रिएक्शंस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ओके। मैंने थोड़ी हिंट्स भी दी है। अब आएंगे प्रॉपर्टी में। ये सीक्वेंस चेंज मत करना, क्योंकि इसके रिलेटेड मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला टू प्रिपेयर द फिजिकल अपीयरेंस एंड केमिकल नेचर, ओके। तो ये पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कलरलेस गैस न्यूट्रल, कलरलेस गैस न्यूट्रल, ब्लू सॉलिड एसिडिक, ओके। तो इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ CNG, डबल CNG, ब्लू सॉलिड एसिडिक, ब्लास्ट, इन बैग, BAG, इन बैग। देखिए, इतना फॉर्मूला पहले हम लिस्ट कर लेते हैं। ऑक्साइड्स सीक्वेंस में रहने चाहिए, एक भी ऊपर नीचे नहीं। पहले आप ऑक्साइड्स की सीक्वेंस, ये फॉर्मूला आधा अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। CNG ब्लास्ट, इन बैग। अब देखिए, पहला ऑक्साइड कलरलेस न्यूट्रल गैस, सेकंड ऑक्साइड कलरलेस न्यूट्रल गैस, ब्लास्ट, ब्लू, ये ब्लू एसिडिक सॉलिड, BL मीन्स ब्लू, A मीन्स एसिडिक, S मीन्स सॉलिड, बैग, ब्राउन एसिडिक गैस। ये बैग की जगह पे मैं कुछ अलग लिखता हूँ, लेकिन अभी मैं बैग लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये BL है तो ब्लू, ये B है तो ब्राउन एसिडिक गैस। तो ये थर्ड ऑक्साइड एंड द फोर्थ। चलिए, 4 की तो प्रॉपर्टी आप, आधा फॉर्मूला अभी हुआ। अब ये ब्लास्ट हुआ ना, तो एक केस हुआ जो लेडीज उसको हैंडल कर रही है और अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये डबल CNG ब्लास्ट है माय फ्रेंड्स। CNG ब्लास्ट इन बैग, सो कलरलेस
neutral gas, colorless neutral gas, blue acidic solid and brown acidic gas. फॉर्मूला आधा है अभी और आगे हम चलेंगे. चलिए, वैसा ही है CNG मतलब कलरलेस न्यूट्रल गैस, कलरलेस न्यूट्रल गैस, ब्लू एसिडिक सॉलिड, ब्राउन एसिडिक गैस ना. प्रॉपर्टी बीच में ले लेना, वो फॉर्मूला के हिसाब से चलिएगा. ठीक है, तो 4 तो खत्म हो गए, लास्ट ही. तो केस क्या, अभी यहाँ पे ही खत्म कर दूंगा मैं. केस हुआ जो एक लेडीज हैंडल कर रही है और अभी केस चल रहा है. तो अब देखिए, कलरलेस सॉलिड, कलरलेस एसिडिक सॉलिड एंड लिक्विड. केस वो लेडीज एडवोकेट. तो आप केस लिख के इसको ऐसे याद रखेंगे, कलरलेस, ए मीन्स एसिडिक, एस मीन्स सॉलिड एंड एल मीन्स लिक्विड. तो ये जो प्रॉपर्टी है 5th ऑक्साइड की हो गई. अब 6 में जो है वो कलरलेस, एसिडिक और सॉलिड. ठीक है, ये जो वर्ड का मतलब नहीं है वो भी जरा आप सोच लीजिएगा. तो पूरा फॉर्मूला क्या हुआ, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ. CNG ब्लास्ट इन बैग, केस एल मतलब कि केस हुआ और वो लेडीज फाइट कर रही है, एंड केस कंटिन्यू मीन्स ऐसे. लास्ट वाला जो है वो आप जरा सेंटेंस मन में पूरा बोलना कि केस हुआ इसके बारे में जो लेडीज एडवोकेट लड़ रही है और अभी केस कंटिन्यू है. तो यहाँ कलरलेस एसिडिक सॉलिड लिक्विड, कलरलेस एसिडिक सॉलिड. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. ये पूरा टेबल ओरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है. ठीक है, तो 6 ऑक्साइड्स 5 कॉलम में आपको आंसर देने हैं. यू हैव टू गिव आंसर इन 5 columns. In first column, name both common and IUPAC formulae, then oxidation state of nitrogen, then methods of preparation that I explain you. Okay, और बैलेंसिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लेना. एंड देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला राइट डाउन द फिजिकल अपीयरेंस, नेचर, ओके, एंड फिजिकल स्टेट. CNG ब्लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेना. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द, ये क्वेश्चन ऐसा है कि स्ट्रक्चर, तो अभी हम आधा ही ले रहे हैं क्योंकि ये टेबल जो है काफ़ी स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, नहीं आता है, बोल रहे कि सर अभी. तो एक साथ में अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सभी ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा. ठीक है, तो आप ध्यान से ये देखना, प्रिपेयर करना. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.